બની બેઠેલા દલ્લા પત્રકાર ફરી સ્પાના નામે ચાલતા કૂટણખાનાની ભલામણ કરવા ઉમટી પડ્યા. પેરેડાઇઝ સ્પાના નામે કૂટણખાનું ચલાવતો સ્પાનો માલિક ફરી એકવાર અમારી ટીમ પાસે કળગળવા આવ્યો, લલચાવા આવ્યો, પણ તેની એક પણ ન ચાલતા છેલ્લે અમારા ખોટા વિડીયો ઉતારી ડરાવવાની કોશિશ પણ કરવા ગયો, છતાં પણ સ્પાના દલ્લાની એક પણ ન ચાલી. પત્રકારત્વ મૂકીને દલાલી તરફ વળેલું બની બેઠેલું રંડી મીડિયા કાન ખોલીને સાંભળી લે. ગરીબ મધ્યમ વર્ગની બહેન દીકરીઓને ક્રાઇમ જ્યોત ન્યૂઝ માનવ તસ્કરીનો ભોગ નહીં બનવા દઈએ. કોઈ પણ બની બેઠેલા પત્રકાર કે બાવડું બતાવનાર બાહુબલીનું નાણાંનું પ્રલોભન કે શક્તિ પ્રદર્શન અમારી આ મુહિમને રોકી નહીં શકે. સત્યવેન્સી છીએ, સત્ય ઉજાગર કરીને જ જંપીશું. આવા લોકોનું પત્રકારત્વ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. આવા લોકો રિયલ એસ્ટેટ કે બિઝનેસમેન લોબીને પણ સમયાંતરે કારણ વિના ધમકાવતા ફરતા હોય છે, પણ સ્પષ્ટપણે કહી દઈએ છીએ કે તમારી કારી અમારી સામે તો બિલકુલ નહીં ચાલે. કાન ખોલીને સાંભળી લેજો. પત્રકારનો મૂળ હેતુ તો કોઈ પણ સમસ્યાને તેના નિરાકરણ સુધી લઈ જવાનો છે, નહીં કે સમસ્યાઓ તરફ આંગળી ચીંધી ઉઘરાણા કરી ઘર ભેગા થઈ જવું. અંતે એટલું તો કહેવું જ પડશે કે પ્રેસ બદનામ હુઆ દલ્લે તેરે લીએ. જો કેમે કરીને આવા દલાલોની અંતરાત્મા જાગૃત થાય. અંતે ખાસ એ બની બેઠેલા પત્રકારોને એટલું જરૂરથી કહીશ કે દલાલી કરવાનો એટલો જ શોખ હોય તો દલાલી કરો, પણ પત્રકારિતાને બદનામ ન કરો. પેરેડાઇઝ સ્પાના માલિક એવા કેતન મારુ, જેમને ઘણી પોલીસ અને પત્રકાર બદનામ થાય તેવા આક્ષેપો પણ કર્યા હતા, અને અમારા દ્વારા એ બધી વાતોનું સ્ટિંગ કરી અને અમારા ન્યૂઝમાં પણ બતાવ્યું. સ્પાના નામે દેહનો વેપાર કરનાર આ કેતન મારુ એ પોતે પ્રેસમાં છે તેવું અમારા કેમેરા સામે જણાવીને પ્રેસ કાર્ડ પણ બતાવ્યું હતું. એ સમયે પણ અમે અમારા ન્યૂઝમાં દર્શાવ્યું હતું, અને ફરી એકવાર દર્શાવી દઈએ કે આવા લોકોને કોણે પ્રેસ કાર્ડ આપ્યું જે ખુલ્લેઆમ કૂટણખાનું ચલાવી રહ્યો છે અને પ્રેસને બદનામ કરી રહ્યો છે, અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે સંબંધ હોવાની વાતો કરી પોલીસને પણ બદનામ કરી રહ્યો છે. તો આવા બની બેઠેલા દલ્લા પત્રકારને લીધે સાચા પત્રકારોને પણ આમ પબ્લિક આડાવડી વાતો કરી જાય છે. અંતે જણાવી દઈએ કે આપણા સ્પાની ઝુંબેશ ચલાવતા આપને એક પીડિતનો ફોન આવેલો. એ ફોનમાં આપને જણાવેલું કે તેમના ઉપર વડોદરાના લુઈસ સ્પામાં તેમના ઉપર જબરજસ્તી બલાત્કાર થયેલો. તે અનુસંધાને પણ આપણે તેમના ઓડિયો સાથેના આપણે ન્યૂઝ રિલીઝ કરેલા, અને ત્યાં સ્પાની ખરાઈ કરવા જતા કે ખરી રીતે વ્યક્તિએ કરેલા આક્ષેપો કેટલી હદ લગીને સાચા છે, શું ખરી રીતે એના ઉપર ત્યાં રેપ થયેલો છે, તો એ જાણતા જોવા જતા આપણે ત્યાં જોયું તો ત્યાં બંને સ્પા વાળા, જ્યાં એક સ્પા લોકાસ્ટાર સ્પા કરીને હતું, તે સ્પામાં એના ઉપર મારામારી થઈ હતી, હાથાપાઈ થઈ હતી એવું જાણવા મળેલું. આપણા ન્યૂઝની લિંક પ્રસાર થતા ત્યાંથી તે બંને સ્પા બંધ કરીને નાસી ગયેલા, અને જ્યાં આપણે ત્યાં ખુલાસો લેતા કે ભાઈ વ્યક્તિએ જે કરેલા આક્ષેપો છે કેટલા સત્ય છે, આપણે ત્યાં ઇન્ટરવ્યુ લેવા ગયેલા, બંને સ્પા આપને બંધ જોવા મળેલા, અને આપણે ત્યાં પણ ઇન્ટરવ્યુ લીધેલા લેડીઝના, તે આપણે અંતરે હમણાં રજૂ કરશું. એ સિવાય જ્યારે જે એમને મોકલનાર અશોકભાઈ કરીને જે કોઈ વ્યક્તિએ જેના ઉપર આક્ષેપ કર્યો છે કે જે અશોકભાઈ કરીને વ્યક્તિ હતા, એમને ત્યાં સ્પામાં એને મોકલેલા, જે સ્પામાં એના ઉપર રેપ થયો, તો અશોકભાઈનું સ્પા રાજકોટમાં છે, તે રાજકોટના સ્પામાં આપણે ગયેલા, અને જ્યાં હજી જરા ચર્ચા કરીએ આપણે, તે પેલા પેરેડાઇઝ સ્પાના માલિક તરીકે જે ઓળખાતા કેતનભાઈ મારુ કરીને હતા, તે ત્યાં આવેલા, ફૂલ ડ્રિંક કરેલા, અને થોડી વારમાં જોતા બની બેઠેલા ડમી પત્રકારોનો પણ ભલામણ કરવા રાફડો ફાટી નીકળ્યો હોવાની ગુણે ત્યાં આવીને ભલામણો કરવા લાગ્યા, ઘણી પ્રકારની વાતો કરવા લાગ્યા, અને અંતરે જોઈએ તો 20 થી 25 જણા ફરી એકવાર ત્યાં સ્પામાં ભેરા થઈ ગયેલા, જે આપણે આપણા સ્પાય કેમેરામાં બધું સ્ટિંગ કરેલું છે, જ્યાં આપને લલચાવવાની ધમકાવવાની પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરેલા, છતાં પણ ના ચાલતા ખુલ્લેઆમ જાહેરમાં દેહ વેપાર કરતા સ્પાના નામે કૂટણખાનું ચલાવતા એવા કેતન મારુ, જે ફૂલ ડ્રિંક કરી અને અંતરે ના હોય તેવી ચર્ચાઓ પણ કરવા લાગેલા. તમને જાહેરાતો આપી દઈએ, તમને શું જોઈએ છે, તમને શું નડીએ છીએ, તમે શું કામે આવું કરો છો, તમને આનાથી શું ફાયદો થશે, આવા અનેક પ્રકારના સવાલો કરી, અને છતાં પણ તેમની એક પણ ના ચાલતા આખરે મીઠી ધમકીઓ દઈને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યા. પણ છતાં પણ કહી દઈએ, અમે ના તો તમારા જેવા દલ્લાઓથી ડરીએ છીએ કે ના તો તમારા જેવા દલ્લાઓ પાસે, લોહીના વેપાર કરતા દલ્લાઓ પાસે રૂપિયાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. હશે એવા તમારા જેવા દલ્લા પત્રકારો જે તમારી પાસે રૂપિયા લઈ અને તમારો સપોર્ટ કરતા હશે. અમે હર હંમેશા તમારા જેવા કૃત્ય કરતા લોકોની વિરુદ્ધમાં છીએ, અને તમારા જેવા અનેક વ્યક્તિઓને ખુલ્લા પાડેલા છે અને ખુલ્લા પાડતા રહેશું. તો ખાસ ફરી એકવાર તમને જણાવી દઈએ કે તમારા જેવા કોઈ દલ્લાના ના તો ડરાવેથી અમે ડરી જશું, કે ના કોઈના ખરીદે
ફાયદેથી અમે ખરીદાઈ જશું. અમે સત્યવંશી છીએ. અમે અમારું પત્રકારિતાનું કામ કરીએ છીએ, કરતા રહેશું અને તમારા જેવા દલ્લાઓને ઉઘાડા પાડતા રહેશું. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જેમ કે આપણે આપણાની મોરના જે ન્યૂઝ ચડાવ્યા, જેમાં આપણે ઓડિયો અને વિડીયોને રાખેલું છે, જેમાં આપણે એક વ્યક્તિનો એક કોલ આવેલો અને જેમાં એને આપણે જણાવેલું કે ભાઈ તમારા ન્યૂઝના માધ્યમથી મને તમારો કોન્ટેક્ટ મળેલો છે અને જેમને એમની આપવીતી જણાવેલી કે ભાઈ એમના ઉપર એક સ્પાની અંદર રેપ થયેલ છે અને જે બીજું સ્પા છે જે લુકા સ્ટાર વેલનેસ સ્પા, ત્યાં એમના ઉપર હાથાપાઈ થઈ છે. તો અત્યારે આપણે ત્યાં લુકા સ્ટાર વેલનેસ સ્પા છે ત્યાં આવેલા છીએ અને જે પીડિત વ્યક્તિ છે એ પણ આપણી સાથે છે. તો જેને જે આક્ષેપો કરેલા છે સામેવાળી પાર્ટી ઉપર, તો એ પાર્ટીમાં આપણે જોયું કે આની મોરના જે બીજા સ્પામાં લીધું તો એ સ્પા પણ બંધ હતું. તો આજે આપણે લુકા સ્ટાર વેલનેસ સ્પામાં આવ્યા છીએ, તો એ પણ અત્યારે સમય 12 વાગ્યાની આસપાસ થઈ ગયો છે, છતાં પણ એ બંધ છે. તો નગર આપણે ખરી રીતે એમને પણ પૂછત કે ભાઈ ખરી રીતે જે વ્યક્તિએ જે તમારા ઉપર જે આક્ષેપો કરેલા છે, જે વસ્તુ આ છે, તો એમાં કેટલું તથ્ય કેટલું હકીકત છે. તો અત્યારે તો કોઈ છે ને, એટલે આપણે ફક્ત એમનું બોર્ડ આવે એટલે આપણે ત્યાં જગ્યાએ આવીને લીધા છે. તો આપણે ફરીથી એ સ્પાનું અને થોડું ઘણું આપણે મેમને પૂછ્યું કે ભાઈ આ સ્પામાં શું શું એમની સાથે થયેલું હતું. हाँ, तो एक बार फिर से आप अपना नाम रिपीट कर दीजिएगा. मेरा नाम आशा है। बराबर. जो अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये स्पा का नाम है लुका स्टार वेलनेस स्पा. हाँ जी। तो जो आपने बोला था मुझे कॉल करके, जो हमने अपने न्यूज में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो लगवाया है, तो उसमें जो इस स्पा में आप एक बार लाइव यहाँ से हमारे कैमरे के सामने जरा एक बार रिपीट कीजिएगा कि इस स्पा में आपके साथ क्या क्या हुआ था. मैं 16 जुलाई को आई थी यहाँ पर और मुझे दूसरे वाले स्पा में से लेकर आए कि कहने लगे बात करनी है तो इधर आ जा. तो मेरे को वो जीजा यहाँ पर लेकर आया. उसके बाद 10 मिनट अंदर जाके बिठाया काउंटर के पास. फिर उसके बाद में मेरे साथ मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगे तो मैं बाहर आई. बाहर आके चिल्लाने लग गई तो मेरे को खींच कर अंदर ले गए और मेरे साथ में मारपीट करी. तो मतलब जो आपने वहाँ पे अगली बार जो बोला, मुझे कॉल करके भी बोला और इंटरव्यू में भी बोला, वो जो लोइस ऐसा करके कुछ स्पा था वहाँ पे, कि आपको वहाँ से यहाँ लेके आए और यहाँ आपको बाद में. हाँ, लोइस स्पा में से लेकर आए मुझे यहाँ लोका स्टार के अंदर और यहाँ आकर मेरे साथ हाथापाई करी लड़कियों ने भी और जीजा ने भी और जो मुन्ना सर थे वो भी. मुन्ना सर और जीजा और जो लड़के उस लोगों ने आपके साथ में हाथापाई करी. हाँ. और लड़कियों ने और जीजा वगैरह ने कहा कि अगर तू इतना शोर करेगी तो यहाँ से तो जिंदा तो जाने से रह गई. तो वो बोल रहे चुप रहे, प्यार से समझा रहे, समझ नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है. तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ. बराबर. तो ये जो स्पा है वो भी उन लोगों का स्पा है सर, उसकी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच. हाँ, ये भी उन लोगों का ही है. लाला सर का, अशोक सर का, मामा सर का, ये सब राजकोट से लेकर और ये बड़ोदरा और भावनगर, ये सब लोग एक ही लोग हैं. मतलब सब ये 7-8 लोग हैं, एक साथ ही चलाते हैं ये स्पा. मतलब ये जो है स्पा के जो ओनर हो 7-8 लोग है, वो पार्टनर है वगैरह कुछ संबंध है. वैसे उसका यहाँ राजकोट ये रिश्तेदारी के अंदर है, सारे के सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं. बराबर. और सभी स्पा सब मिल के चला रहे हैं. हाँ जी. ठीक है ना. તો હવે જોયું ભાઈ આપણે કે ટૂંકમાં જે મોસ્ટ ઓફ જોયું કે ભાઈ આપણે જે અશોકભાઈનું કીધું, તો અશોકભાઈને મેડમનું કેવું છે કે ભાઈ અશોકભાઈ જે છે, અશોકભાઈને આ બધા એક સાથે જે સંબંધી પણ છે અને સાથે ધંધામાં પાર્ટનર છે અને રાજકોટમાં પણ આ લોકોના સ્પા છે અને વડોદરામાં પણ સ્પા છે અને ભાવનગરમાં પણ સ્પા છે. તો પાછું હું થોડું એમને પૂછીશ કે ભાઈ જે સ્પા છે તો ભાવનગરમાં કઈ જગ્યાએ શું આવવાનું છે, એ કેમનું છે. तो मैम जो भावनगर में है अभी अपने राजकोट का लेना बाकी है, अभी अपने वडोदरा के जो आपने बोला वो 2 स्पा के ले लिए. तो अभी जो है वो भावनगर में आप बोल रहे हो वो इसी नाम से है, कौन से नाम से है? लोका स्टार के नाम से ही है. लोका स्टार से नाम से ही. ओके. तो वहाँ पे भी नाम भी सेम ही रखा है. તો હવે જાજુ તો ને દર્શક મિત્રો હું એટલું કહીશ કે આપણે બસ આમનું લેવું છું. જો ખરી રીતે ટૂંકમાં એમના ઓનરને હોત તો આપણે એમનો પણ એક ખુલાસો લેત કે ભાઈ ખરી રીતે જે આ પીડિતે જે આક્ષેપ કરે છે એમાં કેટલું સત્ય છે અને શું હકીકત છે. તો હવે બીજું કાંઈ તો ટૂંકમાં કોઈ છે ને એટલે આપણે કોઈ ચર્ચા નહીં કરી શકીએ. ઓલા સ્પામાં પણ ટૂંકમાં કોઈ નહોતું, ત્યાં કોઈ 2 સ્ટાફના લોકો આવેલા હતા. આપણે એમનું પણ ઇન્ટરવ્યુ જે લીધું જ છે અને એમને પણ આપણે એક બીજા પત્રકાર સાથે કોલ કરેલો કે ભાઈ જે એમને કીધું હતું ફરિયાદ માટે થઈને ત્યાં મેડમ છે બહુ સારા છે, તો ત્યાં ભાઈ આ પીડિતને ટૂંકમાં ત્યાં જવું તો એડ્રેસ નહીં નહોતું, એના માટે થઈને આપણા પાસે એમના નંબર એક બીજે શેર કરેલા હતા. તો એમને કોલ કરીને પૂછેલું
તો ત્યારે એને એવું કહેલું કે ભાઈ જે પીઆઈ સાહેબ છે મેડમ તે નાઇટ ડ્યુટીમાં હતા અને એ અત્યારે રેસ્ટ ઉપર છે, તો એ સાંજના ટાઈમે આવશે, તો તમે સાંજે આવીને ટૂંકમાં ફરિયાદ દઈ શકો છો. તો જોઈએ તો જો આ તો ઠીક છે, ખરી રીતે ટૂંકમાં ગવર્મેન્ટે બધી સિસ્ટમ રાખેલી છે 24 કલાક, કોઈ પણ આવો બનાવ બને તો 24 કલાકમાં ગમે એ સમયે ગમે એ રીતે ફરિયાદ લેવાઈ શકાય છે. છતાં પણ એમને સાંજે 5 વાગ્યાનો ટાઈમ દીધો છે. તો જોશું આપણે કે 5 વાગે કઈ રીતે શું ત્યાં ચર્ચા થાય છે, એફઆઈઆર લે છે, શું છે શું નહીં. તો એક પીડિતને એક મીડિયા તરીકે, એક પત્રકાર તરીકે આપણે જેટલો એક સપોર્ટ દેવાનો હોય ને જે એમના ન્યૂઝ આપણા ન્યૂઝના માધ્યમથી જે સરકારી તંત્ર લગીને પહોંચાડવાનો એ પૂરેપૂરા પ્રયત્ન આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને જો સત્ય અને હકીકત છે આ તો એમને ન્યાય મળવો જરૂરી છે. અને જે ગુનેગાર છે, જો હકીકત આમની સાથે જે આક્ષેપ કરે છે એ પ્રમાણે હકીકત છે, તો આમની સાથે જે બનેલ છે કૃત્ય તો એવા ગુનેગારને સજા મળવી એ જરૂરી છે, તાકે બીજાને પણ એ ધ્યાનમાં આવે કે ભાઈ કોઈ પણ આવો ગુનો કરતા પહેલા એકવાર એને કાયદાનો ડર રહે. જો આ રીતે થઈને કાયદાથી છટકી રહેશે આવા લોકો, તો હરેક લોકો આવી આદતોના, આવા ખરાબ કૃત્ય કરવાના બિંદાસ કોઈ પણ ડર વિના કરતા રહેશે. તો એટલી મારી એક ખાસ એક મીડિયાના માધ્યમથી, એક પત્રકારના માધ્યમથી એટલી અપીલ છે લગત તંત્રને કે ભાઈ એક આ પીડિત છે તેમની ફરિયાદ લે, શું હકીકત છે તે જાણે, જોવે અને જો શક્ય લાગે તો એફઆઈઆર કરે અને ગુનેગાર જે સાબિત થાય એમને સજા દે. ધન્યવાદ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું તેજેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને આપ નિહાળી રહ્યા છો ક્રાઇમ જ્યોત ન્યૂઝ. તો દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું કે આપણે સ્પાની જે ઝુંબેશ ચલાવી છે એ ઝુંબેશમાં આપણે ઘણા સ્પાના આપણે પર્દાફાશ કરેલા, જેમાં સ્પાના નામ ઉપર દેહનો વેપાર જ ચાલતો હોય છે. તો એ રીતે આપણા ન્યૂઝ જે વાયરલ થયેલા એમાં એક પીડિત વ્યક્તિએ જેને આપણા ન્યૂઝ જોઈ અને આપણા ન્યૂઝમાંથી કોન્ટેક્ટ મેળવી અને આપને 2-3 દિવસ પહેલા કોલ કરેલો અને એની આપવીતી એને જણાવેલી કે ભાઈ હું વડોદરામાં લોઈસ સ્પા કરીને છે તેમાં હું જોબ કરવા ગઈ હતી. હું છેલ્લા 3 વર્ષ ત્યાં રાજકોટમાં સ્પામાં જોબ કરતી હતી. ત્યારબાદ ત્યાંથી રાજકોટથી કોઈ ભાઈ હતા એમના સ્પાવાળા ત્યાંના, એમને ત્યાં લુકા સ્ટાર કરીને સ્પા છે ત્યાં એમને મોકલેલ અને લુકા સ્ટાર સ્પામાંથી ટૂંકમાં લોઈ સ્પામાં મોકલેલ. અને ત્યાં મારા ઉપર મારી મરજીની વિરુદ્ધ મારી સાથે જબરજસ્તી થઈ મારો બલાત્કાર કરવામાં આવ્યો. આવો આપને ટેલિફોનિક કોલ આવેલો અને એ કોલ દરમિયાન આપણે પછી તે કોલ બધા રેકોર્ડ કરેલા અને એ સિવાયના એમના વિડીયો પણ આપણે મંગાવેલા કે ભાઈ જે હકીકત છે તમારી એ વિડીયો બાઇટ દ્વારા મોકલાવો મને. અને તે પછી જોયું તો બહુ વધારે પડતું પીડિત હોય આપણે એવું પણ એમને જણાવેલું કે ભાઈ ત્યાં સ્પામાં પણ હું ગઈ તો મને ત્યાં મારી સાથે હાથાપાઈ કરી, આવું તે. તો અત્યારે આપણે વડોદરાના જે આપણે લોઈ સ્પા ત્યાં આવેલા છે અને જે પીડિત વ્યક્તિ છે એ આપણી સાથે છે. તો એ પીડિત વ્યક્તિને આપણે થોડા શબ્દોમાં પૂછશું એમની સાથે કયા સમયે કેવી રીતે શું બનાવ બનાવેલો છે. हाँ जी, आपका नेम क्या है? आशा। तो थोड़ा इधर आ जाओ, तो भी आएगा आशा. ओके. जो आपने हमें कॉल किया, पहले तो आपने मुझे कॉल किया था, हाँ तो जी। पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जो मेरा नंबर है वो आपको कैसे और किसने दिया और कैसे मिले? मुझे न्यूज चैनल से मिला था, मेरे पास एक वीडियो आई थी, जब उस वीडियो के अंदर से मैंने आपका नंबर निकाला था। कौन सी वीडियो थी, क्या वीडियो के अंदर क्या था वो पैराडाइज की वीडियो थी, उसके अंदर आपने छापा मजा कुछ ऐसा किया था, तो मैंने वहाँ देखकर उस नंबर, वहाँ से ही नंबर लिया था। जो राजकोट का पैराडाइज का। स्पा करके है, राजकोट उसका जो का। न्यूज हमने चलाया था उसका पर्दाफाश किया था कि वहाँ पे स्पा की जगह वहाँ पे देह के व्यापार चलते हैं, ऐसा वो वीडियो आपने देखा था? हाँ जी। बरोबर. तो वो वीडियो आपने देखा, तो वो वीडियो आपको किसने भेजा कि मेरी आपने एक खुद देखा? फ्रेंड ने भेजा था, बरोबर. तो मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने फिर उसमें से आपका नंबर निकाला जब मेरे साथ पे ये हादसा हुआ। बरोबर. तो आपने न्यूज देखी तो आपको न्यूज अच्छी लगी, तो हमें काफी ऐसा भी सुनाई दिया गया है कि भाई हम जो न्यूज चला रहे हैं कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता. बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जो लड़कियां रहना चाहती है इस लाइन के अंदर उन लोगों को नहीं अच्छा लगता है, पर हम लोग इस लाइन में नहीं रहना चाहते, पर मजबूरी है, थोड़े टाइम के लिए यहाँ फंस गए। मतलब हम जो ये स्पा का जुबेश चला रहे हैं वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? सही है, एकदम अच्छा है। बरोबर. तो अब मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आप रहने वाले कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, द्वारका की। दिल्ली द्वारका की. तो आप कितने समय से यहाँ गुजरात में आई हो? मैं 2-2.5 साल से हूँ यहाँ पे गुजरात में। गुजरात में आप कौन से शहर पे थे पहले? राजकोट। राजकोट शहर में. वहाँ पे भी आप ये स्पा में जॉब करते थे? हाँ जी। हाँ. तो कितने साल तक वहाँ जॉब किया आपने? मेरे को 2-2.5 साल हो गए राजकोट में जॉब करते हुए। 2-2.5 साल आपको वहाँ हो गया. फिर आप अभी बड़ौदा में जो आपके साथ जो बनाव बना, तो उसके हिसाब से आपने जो हमें कॉल किया तो बड़ौदा आप आए, तो यहाँ कितना टाइम से आप आए? मैं बड़ोदरा पहली बार आई हूँ,
और मुझे राजकोट के अशोक सर ने भेजा था। मैंने उनसे वैकेंसी पूछी थी, तो उस टाइम में तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर दूसरे दिन उन्होंने बोला कि बड़ोदरा के अंदर वैकेंसी है लोका स्टार के अंदर, तुम वहाँ चली जाओ। तो मैं फिर उनके कहने पे उन्होंने मेरे को नंबर दिया, एड्रेस दिया। तो उनके कहने पे मैं यहाँ पे 11 जून को आई थी रात में। ये जो अशोक सर है वो कौन है और वो क्या जॉब करते हैं? वो राजकोट का स्पा चलाते हैं, उनके 7-8 ब्रांच है, आत्मिया, लोका मतलब वो स्टार। स्पा चलाते हैं, उसके 7-8 ब्रांच उसके खुद के है जो अशोक सर हाँ आप जी, बोल रहे हैं। 3-4 बराबर। लोग हैं, उनके साथ मिलजुल कर है। बराबर। तो जो सही तरह से स्पा है, या जैसे हम जुबेस चलाते हैं स्पा के अंडर तो पूरा बुरा काम ही चलता है, उस तरह का स्पा है? वो सब काम होता है, सारा स्पा उनके जितनी ब्रांच है सबके अंदर सेक्स वगैरह सब होता है। उसके स्पा में मतलब बुरा काम सभी उसके स्पा में होता है? सब काम होता है हाँ। सारे तो जगह। आपका उसका उसका ये अशोक सर है, उसका कॉन्टेक्ट आपको किसने किया था? आप खुद उसके स्पा में जॉब करते थे ऐसा थे? ये बहुत पुराना बात हो गई, मुझे ध्यान नहीं है कि मुझे कैसे नंबर मिला था। बराबर। ओके, तो इसने आपको बड़ौदा पे भेजा। बड़ौदा में कौन सा स्पा पे भेजा उसने आपको? मुझे बड़ोदरा के लोका स्टार पे स्पा में भेजा था। बराबर। और मैं 11 जून को आई थी यहाँ पर, हाँ हाँ। करीब रात को 10 साढ़े 9 बजे के आसपास में। बराबर। जब लोका स्टार, ये क्या बोलते हैं उस एरिया का नाम सुपर बेकरी करके है कोई, सुपर बेकरी के पास में लोका स्टार है। बराबर। तो और लोका स्टार पे आप गई तो आप 11 जून को वहां पे पहुंची, तो आपका जो आपके साथ हुआ वो अभी है लुइस स्पा है वहां पे हुआ या लोका स्टार पे हुआ? लुइस स्पा में, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पर। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वहां पे आपके साथ बलात्कार हुआ, हाँ जी। आपकी मर्जी के अगेंस्ट, ठीक है? तो लुका स्पार में आप गई तो इसका यहाँ एड्रेस किसने भेजा आपको? मैं लोका स्टार में गई, उस दिन रुका तो वहाँ पे मुन्ना सर बोलने लगे, राकेश सर बोलने लगे कि हमारी दूसरी ब्रांच में जाना पड़ेगा। हमारी 4-5 ब्रांच है यहाँ पे, तो उसमें से एक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक जीजा करके है, तो वो सुबह के टाइम मुझे 10:30-11 बजे यहाँ पर लेकर आए इस वाले स्पा के अंदर। तो मैं यहाँ पर ही थी 12 तारीख में, और 12 तारीख में यहाँ पर मैं अंदर एंट्री करी, देखा स्पा। तो मेरे को लास्ट वाले रूम में बैठने के लिए बोला, मैं लास्ट वाले रूम में बैठी थी, उस टाइम में कोई क्लाइंट नहीं था। बरोबर। मतलब जो लुका स्टार स्पा वाला है उनका ही ये ब्रांच है? हाँ जी। उसने वहां पे नहीं रखा आपको, यहाँ पे वो छोड़ने आए? हाँ जी। तो यहाँ पे आपको 12 तारीख को छोड़ा? हाँ जी। हाँ, तो किस दिन आपने जो बोला आपके ऊपर जबरदस्ती हुई, आपका रेप हुआ है, वो कौन 12 सी तारीख को, कौन सा समय? 12 तारीख, उसी दिन फर्स्ट डे। 12 तारीख को, 12 जून को? हाँ जी, 12 क्या जून को। समय क्या होगा? ये शाम का टाइम होगा कोई, मैं परफेक्ट टाइम नहीं बता सकती, क्योंकि 4-5 का टाइम होगा या 6-5 का होगा। ओके, 4 से 6 के बीच का टाइम है, बरोबर? हाँ जी। और दूसरी बात है, जो आपका रेप किया जो बोल रहे हो, वो बंदा ये स्पा वाला था या कोई ग्राहक था, कस्टमर था, कौन था? ग्राहक था, ग्राहक कस्टमर था, इनका पर्सनली कस्टमर था। और इन्होंने बोला हमारा पुराना क्लाइंट है, ठीक है, अच्छे से अटेंड करना, मसाज अच्छे से देना। तो बराबर। मैंने ठीक है। तो उससे पहले भी एक क्लाइंट आए थे, मैंने उनको भी हैंडल किया था, वो भी करके गए थे, पर उनका ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था, वो अच्छे थे वो क्लाइंट, तो वो चुपचाप गया था। जो पहले क्लाइंट थे वो सिर्फ मसाज करके आपके पास से वो गए, वो चलो। उसने कुछ आपके साथ बुरा नहीं हरकत किया? नहीं। दूसरा जो क्लाइंट आया उसने आपके साथ में जबरदस्ती की? हाँ जी। ऐसा मेरे तो को वो कहाँ का था, ऐसा वैसा कुछ आपने स्पा वाले को, ये स्पा का ओनर है, उसने कुछ आपको बताया वो कहाँ रहता है, क्या वो करता जो है? ओनर आए थे, जीजा जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोला हमारा पुराने क्लाइंट है, वो ऊपर ही रहते हैं, ठीक है, वो मतलब हमारे जो लिए अभी ये लोई स्पा है जो अपना ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के ऊपर वो ऊपर माले में कहीं रहते हैं। बरोबर रहते हैं, या उसका ऑफिस है, क्या है? ऑफिस है। ऑफिस है उसका? हाँ जी। तो अभी जो आपके साथ में जबरदस्ती हुआ, वो आपने जो आपका स्पा का ओनर है उनको बताया आपने? हाँ जी, मैंने उनको बताया था, ये मेरे साथ अंदर रूम के अंदर लोग था, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी, और बहुत सारी ड्रिंक कर रखी थी, दारू पी रखी थी, और मेरे साथ में अंदर जाके जबरदस्ती करी, मेरा बलात्कार करा, मेरी मर्जी के खिलाफ सारा काम हुआ है। और तो क्या फिर स्पा वाले ने क्या बोला, स्पा का ओनर है उसने क्या बोला? मैं अंदर रूम में से चिल्ला रही थी, सर कर रही थी, पर उन्होंने सुना नहीं। जब वो क्लैंड ने लॉक खोला, तो वो लॉक खोल कर तुरंत ही गेट पे काउंटर पे आके खड़ा हो गया। मैंने कपड़े वपड़े पहने और मैं तुरंत आई, मैं बाहर आके सर को बोला कि ये मेरे साथ में गंदा करके जा रहा है, मेरे साथ जबरदस्ती करके जा रहा है।
मैंने उसको बताया, पर उसने ये बोला कि छोड़ो, इस बात को छोड़ो, खत्म करो, अब तुम यहाँ खड़े हो जाओ। तो मैं काउंटर के पास में खड़े होकर रोने लग गई, बोलने लगी। तो नहीं, तो उस क्लाइंट को मैंने बोला कि ऐसा तो करके जा रहा है, तो उसने मेरे को बोला कि तू बाहर आएगी तो तेरे को जान से मार देंगे, धमकी देने लगा। किसने आपको धमकी किसने दिया? क्लाइंट ने धमकी दी, मेरा क्लाइंट ने, बलात्कार जिसके भी आपके करा साथ और जबरदस्ती की उन्होंने? हाँ, मेरा बलात्कार भी करा और जबरदस्ती भी करा उसने और आपको धमकी भी दी, दिया? धमकी भी दी। हाँ, तो फिर भी आपका जो स्पा का ओनर है उसने कुछ बोला ही नहीं? उसने कुछ बोला नहीं, उसने तो बल्कि काउंटर की पेमेंट भी वापसी करी और बोला कि वो हमारा पुराना क्लाइंट है, कस्टमर हमारे लिए भेजता रहता है, उसके कस्टमर भेजने से हमारा स्पा चलता है। मतलब जो उसके स्पा ने जो आता है स्पा करने के लिए, उसकी जो फीस दी उसने कस्टमर ने, वो भी स्पा वाले ने उसको वापस कर दी? हाँ जी। बराबर। और दूसरी बात है, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अभी जो ये स्पा है, जैसा जैसा आपके साथ 12 जून को बना, हाँ ठीक जी। है ना, बनाओ, तो आपने पुलिस थाने में या कहीं जगह पे कंप्लेन या कुछ किया आपने? मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे ही था, मैं पहली बार ही आई थी, तो मैं कहाँ पे जाती। उसके बाद में 7-8 बजे करीब ये मेरे को वापसी लोकल स्टार में लेके चले गए। मैं वहाँ पे जाकर भी रोई, मैं वहाँ पे जाके कुछ नहीं बोला। जब 13 तारीख को भी मुझे यहाँ पे वापसी लेकर आए, 13 तारीख को लेके आ रहे थे, तो वहाँ पे लाला सर और उनके एक और फ्रेंड थे या दोस्त थे, वो आए थे। तो वो गाड़ी के अंदर हाय हेलो कर बोल रहे थे, वो बाइक पे लेके गए मुझे, यहाँ बाइक पे लेकर आए यहाँ से। तो 13 तारीख में मैं इसलिए आई थी, अगर मैं चाहती पुलिस केस कर सकती थी, पर मुझे एक उम्मीद थी यहाँ पर कि मैं यहाँ पर आऊंगी, शायद वो क्लाइंट वापसी आएगा तो मैं उसको पकड़ूंगी, तो मैं पुलिस केस कर पाऊंगी। पर वो क्लाइंट नहीं आया, और जब मेरे साथ में ओनर ही मेरा साथ नहीं दे रहे, तो फिर मैं अकेले रह के यहाँ पे मैं किससे हेल्प मांगती। बरोबर। अभी जो है, अभी समझ लो आप पुलिस केस करो, कुछ ऐसा हमारा न्यूज के माध्यम से पता चले, पुलिस आपका कांटेक्ट करे, कुछ पूछे, तो बंदे को आप चेहरा देख के ऐसा पहचान सकती हो? हाँ जी, मैं और पहचान दूसरा, सकती जैसे कि कहीं सारे स्पा के हमने स्टिंग किए हुए हैं, कहीं का न्यूज भी हमने लगाए हुए हैं, जो हम जुबे चला रहे हैं उसमें, तो उसमें हमें ऐसा मालूम हुआ है कि भाई कोई भी कस्टमर आता है तो उसका एक रिसिप्ट जैसे एक बिल बनाते हैं, हाँ वैसे जी। लिख के देते हैं, तो वो यहाँ इस स्पा में ऐसा सिस्टम है कि हाँ नहीं? जी। तो उस रिसिप्ट में वो बंदे का नाम, कांटेक्ट नंबर, वो सब लिखा हुआ होगा ना, अगर पुलिस को इंक्वायरी हाँ करना जी, है तो वहां उसका से वो पकड़ा जाएगा। पूरा स्लिप बना हुआ है, जो पेमेंट वापसी करी थी, तो वो फोन के अंदर भी उसका स्लिप होगा, पेमेंट का वापसी जाने का, सब कुछ होगा इन लोगों के पास में, उस क्लाइंट का। बराबर। और दूसरा जो आपको जिसने भेजा, आप बोल रही हो राजकोट स्पा वाले अशोक सर ने, अशोक तो सर, अशोक सर को आपने बताया कि आपने जहाँ पे मुझे भेजा वहां पे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है? मैंने 13 तारीख को किसी से कुछ नहीं बताया था, सिर्फ वो जीजा को पता था, जीजा ने ही सब कुछ सबको बताया था कि बात करी होगी। तो मेरे को 13 तारीख तक तो कोई बात नहीं करी। जब 14 तारीख में इन्होंने मेरे को बोला कि ये स्पा बंद करना है, वहाँ पे नहीं जाना है, तुम राजकोट निकल जाओ यहाँ से, ठीक है, काम वाम नहीं है यहाँ पर, तो ऐसा बोला। तो मैंने फिर शाम के टाइम में मैंने राकेश सर को बोला कि वो क्लाइंट मेरे साथ में रेप करके गया, बलात्कार करके गया, आपने उस क्लाइंट के बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं करा। तो राकेश सर, मैंने बोला 376 का केस बनता है उसके खिलाफ, आप लोग कंप्लेंट करो, मैं भी कंप्लेंट कर रही हूँ। तो उसने बोला है कि ऐसे कैसे कोई कंप्लेंट कर दोगी। तो वो जाके राकेश सर जाके उसको बोलकर आया लाला सर को, लाला सर अंदर आए, लोका स्टार के अंदर की बात कर रही हूँ, लोका स्टार में ही उन्होंने मेरे से बात करी थी। तो लाला सर अंदर आके मुझको यूँ बोलते हैं, लड़कियां सारी बिजी थी तो लड़कियों को कुछ नहीं पता है वहाँ पर। तो सर मेरे को लाला सर ने बोला कि तू क्लाइंट के ऊपर 376 बनाएगी, वो हमारे लिए क्लाइंट बेचता रहता है, ठीक है, तो ऐसा कर, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना राजकोट और राजकोट क्या, बड़ोदरा क्या, दिल्ली की भी नहीं रहेगी, कब कहाँ मार के डाल देंगे पता नहीं चलेगा। तो मतलब ये जो आपको ऐसा बोला कि भाई राजकोट, बड़ोदरा या दिल्ली में भी कहीं पे भी तुम्हें मार के काट देंगे, पता भी नहीं चलेगा, ऐसा किसने बोला? लाला सर ने। लाला सर बोले तो कौन है वो? वो लोका स्टार का ओनर है, इसका लोका भी स्टार का ओनर है, ओनर है और इसका भी ओनर है। वही ओनर है। बराबर है। हाँ तो जी। जो अशोक सर ने आपको भेजा, तो अशोक सर के साथ में आपकी इसके बारे में कुछ बातचीत मैंने पहले 14 बाद में तारीख कुछ को हुई? 14 तारीख को उनको बात करने की कोशिश करी थी। उन्होंने ये बोला जो भी मैटर है, जो भी कुछ है, वहाँ पे लाला सर है और लाला सर से शेयर करो। मैंने उनको बोला आपने भेजा है, आप पर मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ में इतना कुछ हुआ है तो आप मेरे को देखोगे ना। कहता मेरे को नहीं पता, मैं आप वहाँ जाके लाला सर से बात करो, मेरे को फोन करने की जो वो नहीं है। तो मतलब जिसने अशोक सर ने आपको भेजा यहाँ पे,
उसने अपनी जिम्मेदारी से पूरा वो मुकर गए, हाँ जी। कुछ बात ही नहीं कैसा वो आपके हाँ साथ, जी। ठीक है ना। और मेरे फोन में उनके सारे मैसेज रहेंगे। हाँ, और उसके बाद में सब हुआ, उसके बाद में क्या किया आपने? तो मैं 14 तारीख को चुपचाप बैठी रही हूँ। उन्होंने मेरे को कहते हैं कि तू राजकोट निकल यहाँ से, वरना यहीं पर ही खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं है, ठीक है। उन्होंने मेरे को बस के पर वो एक उमेश सर है वहाँ पर, उमेश सर को बोला है कि इसको वहाँ पे छोड़ के आ बस स्टैंड, और बस में बिठाकर, तो जब ये बैठ जाए तभी वापसी आना। बराबर, तो वहां से बस में बिठा कर आपको तो कहाँ पे भेजा? बस में तो वो नहीं बिठा पाए, वहाँ पे एक ऑटो वाला आया, तो ऑटो वाले पे मैं बैठ गई। मैंने बोला सर मैं सीधा ही राजकोट जाऊंगी, अब मत मेरे को डराओ वराओ, मैं चुपचाप चली जाऊंगी, अब मैं कुछ नहीं करने वाली। वो वहाँ पे वो उनको कहने लगे कि चुपचाप चली जा तो अच्छा है, वरना यहाँ पर ही कब क्या हो जाए कुछ नहीं। पर मुझे शक था मेरे ऑटो के पीछे में लोग आ रहे थे। तो आप ऑटो में गए यहाँ से, फिर आप राजकोट गए या आपने शहर दिल्ली गए, कहाँ पे गए आप? मैं राजकोट गई। राजकोट गए, फिर हाँ। उसके बाद में क्या हुआ? राजकोट गई, वहां से राजकोट गई मैं, वहां जाके और क्या कर सकती है, अब लड़की औरत सिर्फ रोने के अलावा। मैं इतना टाइम तक वहां पे रही, पर मेरे दिल दिमाग से ये हादसा ही नहीं निकला। हम लोग अगर इस्लामी काम करते हैं सर, अपनी मर्जी से करते हैं, कुछ भी करते हो, कोई भी सर्विस करते हो, या फूल हो या वो हमारी मर्जी होती है। किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता जब मर्जी आके हमारा शरीर कोई भी नोच के चला जाए। वो मैंने सुना, आपने बोला, मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद में जो आप 14 जून का 12 जून की बात कर रहे हो, तो अभी जुलाई मंथ चल रहा है, हाँ जी। 19 जुलाई, ठीक है। तो इतने समय आप कहाँ पे थे? मैं राजकोट में ही थी। मतलब 14 जुलाई से लेकर आज तक आप राजकोट में ही थे? राजकोट में ही थी, अपने रूम पर ही। बरोबर, तो आप दिल्ली वहाँ पे गई, उसके बाद में गए? नहीं, दिल्ली नहीं गई मैं, दिल्ली से तो आई थी 3 जून को। 3 जून को आप दिल्ली से आए, फिर 12 जून को ये आपके साथ में हुआ, फिर हाँ तब जी। से आप राजकोट में ही रह रही हैं। राजकोट में ही हूँ। फिर आपने जब मुझे कॉल किया तब ऐसा आपने बताया कि आप वहाँ स्पा के वहाँ पे आए हो, जिस बंदे ने रेप किया उसका ऑफिस ऊपर है, तो आप उसको ढूंढ रहे हो, ऐसा। तो मेरे वो कौन सी तारीख पे आप यहाँ पे आई थी? मैं यहाँ पे राजकोट से 15 तारीख को बैठी थी रात में। सुबह 16 तारीख को मैं यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे आ गई थी सुबह में। हाँ, फिर क्या और हुआ फिर यहाँ उसके आने के बाद में मैंने आपको कॉल करा था, आपको मैंने अपनी सारी बातें बताई थी। फिर उसके बाद में आपने मेरे को थोड़ा टाइम दिया, तो मैं वहाँ से 10:30 बजे यहाँ पर आई, इस वाले स्पा में जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पे जब तक कोई नहीं आया था, 12:30 बजे ये ऑफिस खुला था। 12:30 बजे ऑफिस खुलने के बाद में तब मैं अंदर गई तो एक स्टाफ था और वही जीजा था अंदर। तो मैंने बोला वो बंदे का मुझे फोटो, उसका नंबर वगैरह चाहिए, वो मेरा यहाँ पे रेप करके गया, तो यहीं पर ही पुलिस कंप्लेंट करूंगी मैं। तो वो कहने लगा, उसने तुरंत ही फोन घुमाया किसी को, उधर लोका स्टार में फोन घुमाया, तो लोका स्टार से बात करने के लिए मेरे को बोला कि मैडम आप इधर आ जाओ, आप जो भी बात करनी इधर आके बात करो, उधर से आ जाओ। तो ये लोग मुझे वहाँ पे ले गए। 16 जुलाई की बात है, मेरे को वहाँ पे ले गए, लोका स्टार में ले गए। यहाँ से तो मीठे बन के लेके गए अच्छे से। वहाँ जा गई जब 10 मिनट मेरे को बिठाया, पानी वानी का पूछा ही गया। उसके 10 मिनट उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ में जब मैं बोलने लगी कि इतना गंदा गंदा मेरे साथ में हुआ है, ये वो, कहे कुछ नहीं हुआ तेरे साथ में, ठीक है, तू झूठा रोप लगा रही है, ऐसे से मेरे को बोलने लगे। तो मैं बाहर जाके चिल्लाने के लिए जैसे स्पा में से बाहर निकली, तो मुन्ना सर और बाकी मुन्ना सर जीजा और बाकी के जो स्टाफ थे, उन्होंने मेरे को अंदर खींचा, अंदर ले जाके किचन के साइड में मेरे साथ में हाथापाई करी, मारपीट करा, मेरे हाथों पे नील भी पड़ा हुआ है। तो मैं बस उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बाहर स्पा से निकलने नहीं दिया 8 बजे तक, 7 बजे तक। 8 बजे भी बहुत मुश्किल से रात को मैं निकली थी। बरोबर, तो जो आपके साथ में वहाँ पे लुका स्टार स्पा पे आप गए, वहाँ आपके साथ में जो है जीजा वगैरह वगैरह जो बोल रहे हैं, उसने आपके ऊपर हाथापाई की, मतलब मारपीट की आपके साथ। तो स्पा के अंदर कैमरे तो लगे हुए होंगे, तो स्पा में ऐसा कुछ आया है? वो सीसी कैमरे में आया होगा। वहाँ की 2 लड़कियां ने, स्टाफ ने मेरे को गाली बकी, मेरे से हाथापाई करी, कहने तेरी वजह से अगर हम लोग अंदर गए तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं पर भी हो जाए। मतलब 16 जुलाई को ना? हाँ जी, 16 जुलाई को अगर पुलिस वेरीफाई करे तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी चेक करे, हाँ। तो उसके अंदर आपके साथ हाथापाई हुई है, हाँ जैसा जी। आपको घसीटा हुआ है, हाँ जैसे आप बोल जी। रहे हो, वैसा सब उसमें दिखाया जाएगा। हाँ जी, सब कुछ हाँ। दिखाई देगा।
मैं वहाँ पे बैठ के चाय पानी भी मेरे को फुसलाने के लिए उन्होंने, मैं निकलने के लिए वहाँ से कि जैसे तैसे वहाँ से उस स्पा में से निकल जाऊँ, पर मैं जैसे भी बाहर एंट्री करती थी तो कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता था मेरे सर पे, मैं नीचे नहीं उतर सकती थी स्पा के, कि ये जाके किसी को फोन ना कर दे, पुलिस को फोन ना कर दे। तो इसी वजह से वो लोग मेरे आगे पीछे ही घूम रहे थे। जब सर जिस टाइम मैंने आपको भी फोन किया तो उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि मेरे आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, मेरे को नीचे तलक नहीं उतरने दे रहे हैं। ओके। और जब आपको ऐसा लगा मुझे कंप्लेन करना है, एफआईआर करना है, फरियाद करना है रेप का, तो वो आपके दिमाग में कैसा है? आपको किसी ने बताया या आप खुद जानते थे कि मैं ऐसा ऐसा करूँ तो मुझे इंसाफ मिलेगा? मेरे को किसी ने नहीं बताया, बस मेरे अंदर की जो अंतरात्मा थी वही मुझे बार बार ललकार रही थी। हम जो भी हो हमारे साथ में हमारी अपनी मर्जी होना चाहिए, पर किसी और की नहीं। और मेरे साथ में ऐसा हुआ वो हादसा मैं भूल नहीं पा रही थी, ना मैं तो ना जॉब कर पा रही थी ना कुछ, घर में ही थी, बीमार पड़ गई थी, बुखार अलग था, खांसी अलग थी, कितना मैं बीमार पड़ी, पर हिम्मत करके कैसे न कैसे करके किराया भाड़ा, मेरे पे किराया भाड़ा नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से मैं बड़ौदा नहीं आ पा रही थी और कुछ बीमारी की वजह से नहीं आ पाई। जैसे मेरे पास में किराया भाड़ा हुआ तो उस दिन ही मैं बड़ौदा आ गई। बरोबर। वो जो आपने बोला कि वो बंदा ड्रिंक किया हुआ था, वो आपको कैसे पता चला? वो जब मैं अंदर गई तो बहुत महक आ रही थी रूम के अंदर से। मैंने कहा सर आपने दारू पी रखा, मैं स्पा नहीं कर सकती हूँ। तो उसने बोला कुछ नहीं है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, आज सीधा साधा हूँ, आप मेरा स्पा कर दो। और वो सीधा साधा कैसा निकला आप मैंने आप बता चुकी हूँ कैसा हुआ मेरे साथ। बराबर। और दूसरा जो हम जैसे जुबेश चला रहे हैं तो हमने काफी सारे ऐसे न्यूज भी चलाए हुए हैं कि जहाँ हर जगह स्पा का तो सिर्फ नाम ही रहता है, अंदर सिर्फ बुरा काम ही चलता है। तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि जो स्पा है, जितने भी यहाँ सभी स्पा चल रहे हैं, वो स्पा सही है या स्पा गलत है? स्पा के अंदर क्या क्या चल रहा है? मैं स्पा वालों ओनरों को ये बोलना चाहती हूँ लड़कियों को सैलरी दे और अपना जो प्रोफेशनल काम होता है वो उस वजह से लड़कियों को रखे, ताकि वो ये नहीं है कि आपकी दुकानदारी चलाने के लिए वो अपना जिस्म बेचते रहे। वो मतलब जो आप बोल रहे हो तो स्पा में किसी लड़की को सैलरी नहीं दिया जाता? कोई भी सैलरी नहीं मिलती है, झूठा वो क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं थाने में, वेरिफिकेशन करवाते हुए कि हम लड़कियों को इतनी सैलरी देते हैं, ये है वो, ठीक है, ये लड़की इतने सालों से एक्सपीरियंस पे है या नहीं होता है। कोई भी गुजराती वहाँ पे गुजरात की लड़कियां नहीं होती है, सब 16 साल 15 साल की लड़कियों को रखते हैं। और ये 16-15 साल का तो स्पा में 15-16 साल की लड़कियों को भी रखते हैं? हाँ जी, सब सारे स्पा के अंदर 15-16 साल की लड़कियों को स्पा में रखते हैं। बराबर। और दूसरा जो मैंने आपको पूछा एक प्रश्न के, जो स्पा में आपने बोला कि सैलरी नहीं देते, तो आप लड़की सब जॉब करती हो तो आपका गुजरान कैसे चलता है? कोई बात नहीं, नहीं पूछूंगा मैं वो, मतलब हैं? हाँ हाँ, ले ले वांधो नहीं। तो जो स्पा के अंदर जो है मैं वो पूछना चाहूंगा कि स्पा के अंदर जो है वो क्या क्या चल रहा है, जो हम सारे सभी अपने न्यूज में सभी का चलाया है। जैसे काफी सारे न्यूज का पर्दाफाश किया हमने, अंदर सिर्फ गंदा काम ही चलता है, ठीक है? तो उस तरह का सभी बात स्पा में चलता है? सारे ए टू जेड स्पा के अंदर चलता है, खाली गंगा हॉस्पिटल नहीं है। गंगा हॉस्पिटल पॉपुलर है, अच्छा स्पा है वो, वहाँ पे लड़कियों को सैलरी दी जाती है, अच्छा स्पा है। बाकी गंगा स्पा छोड़कर जितना भी राजकोट, बड़ोदरा, ये भावनगर, गांधीनगर, जितना भी है, जामनगर, सब में सारनी सोशल चलता है। लड़कियों के साथ में गलत काम होते हैं, लड़कियां अपनी मर्जी से भी करती है, कुछ ओनर के दबाव में आके भी करती है कि मेरा दोस्त है कर देना, ऐसा सब उनको करना पड़ता है। और बहुत से पुलिस वाले भी होते हैं उसके अंदर जो उनके साथ में गलत करके जाते हैं, पर कोई स्पा की लड़की सामने नहीं आती। एक मिनट में आपको एक भाई आए, पहले उनसे बातचीत कर लो। પોલીસ ના છો, બરોબર. ક્યાં સ્ટેશનમાં છો આપ સર? લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન બરોબર. શું આપના બકલ નંબર ને જરા જણાવશો? તમારું નામ તમારું પેલા જણાવો તમે મારું તેજેન્દ્રસિંહ જાડેજા, જાણ કરી ક્રાઇમ જ્યોત ન્યૂઝ. ક્રાઇમ જ્યોત જો ન્યૂઝમાં સાહેબ અમારે લેવા માટે થઈને કોઈ પોલીસ અધિકારીને કોઈ જાણ કરવાની કોઈ અમારી એવી ફરજ નથી હોતી. પોલીસ સ્ટેશન જાણ તો કરો આ ક્રાઇમ થયું છે હા, કાલે આપણે ઓલરેડી આપણે ન્યૂઝ ચડાવી દીધા છે આપણા ન્યૂઝમાં, અને એ સિવાયનું આપણે તેમને સલાહ પણ દીધી છે કે ભાઈ હર્ષ સંઘવી સાહેબને તમે ચર્ચા કરો, જે પણ કાંઈ હશે તમને પૂરેપૂરો ત્યાંથી ન્યાય મળશે.
ના ન્યાય તો મળવું જોઈએ. હા એટલે જે આપ અત્યારે આવ્યા છો તમે મને આપે એ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છો કે ભાઈ ટૂંકમાં તમને મંજૂરી લેવી જોઈએ, તો હું એક પત્રકાર છું. એઝ અ પત્રકાર તરીકે મારે ક્યાં ન્યૂઝ લેવામાં મારે કોઈની મંજૂરી લેવાની આવશ્યકતા નથી એમ. હવે એ સિવાયનું જે તમે મારો વિડીયો લેતા હતા તો કોઈ વાંધો નહીં, આપણે સીસીટીવી ની સામે અને જે જગ્યા છે સ્પાન એ જ જગ્યાએ આપણે લીધું છે અને જ્યાંથી આપણે ઉપર ચડી ત્યાંથી ઓલરેડી મોસ્ટ ઓફ બધી સીસીટીવી છે. તો હવે મેં મારો પરિચય આપ્યો, તમે તમારા નામ, તમારા બકલ નંબર. હું લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન થી મોહિતસિંહ બોલું છું. હે? મોહિતસિંહ, લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન. હા, બકલ નંબર આપને. 3293. બરોબર. ને આપ સર? મારું નામ અનિલભાઈ. અનિલભાઈ, બકલ આપ? નંબર 1735 માં. બરોબર છે. હવે અહીંયા અત્યારે આપ આવ્યો, આપને કોઈને માહિતી આપી કે ભાઈ આ રીતે ન્યૂઝ વાળા આવ્યા છે એના માટે થઈને આપ આવ્યા છો, શું છે? માહિતી એવી કે કોઈ આયા છે આપણા વિસ્તારમાં પોલીસ વાળા કે ન્યૂઝ વાળા. નહીં, ન્યૂઝ વાળા, પોલીસ વાળા ને યાર મારું આઈ કાર્ડ છે. એટલે અમને એ સિવાય એવી તમે માહિતી હા, હા, મળે. 100% આવી અમને એવી માહિતી મળે તમે ખાલી જાણવા માટે હા, 100% જે તમારી ફરજ છે હા. આપણે કયો. હા, પોલીસ વાળા હવે બનાવમાં એવું છે, આપણે આ સ્કેન કરી લ્યો અથવા કે ટૂંકમાં યુટ્યુબમાં સર્ચ મારી લ્યો. આપણે કાલના સમાચાર આપને 2 દિવસથી હમણાં દેખાડી દઈએ. 2 દિવસથી આપણે આ બેનના ફોન આવેલા છે કે હા આપણે એક સ્પાની ઝુંબેશ ચલાવી છે Yes. આપણા ન્યૂઝમાં કે મોસ્ટ ઓફ આપણે મોરબીના 5 થી 7 સ્પાના મેટલ લીધી છે, રાજકોટની ઘણી બધી લીધી છે અને કચ્છની પણ હમણાં લીધેલી છે. હવે એમના હિસાબે આ બેનને ટૂંકમાં કોઈ અમારી ન્યૂઝની લિંક મોકલેલી અને કે ભાઈ આ ન્યૂઝ વાળા છે, આ ન્યૂઝ વાળા સચોટ ને સાચું દેખાડે છે તો તમે આમને જાણ કરો એમ. હવે તે અમને જાણ કરેલો, અમને જાણ કર્યું એટલે આપણે મોસ્ટ ઓફ એમના કોલ રેકોર્ડ આતે કરી અને કાલ સાંજે રાત્રે 3 વાગે મેં ન્યૂઝ ચડાવેલા છે. અને એ સિવાય પછી આપણે મેં કીધું જે જગ્યાએ બનાવ બન્યો છે એ જગ્યાએ આપણે તમારું લઈ, સ્પાવાળાનું પણ લઈ, જેમ પોલીસ પણ ખુલાસો લે ને એ રીતે ભાઈ ટૂંકમાં ખાલી આમને આક્ષેપ કરેલા એ સાચા છે કે ખોટા છે. તો પછી સ્પાનો એટલે સ્પાવાળાને આપણે ફોન કરાવ્યો. તમે ક્યારથી એક મિનિટ, આપણે એ ચર્ચા કરી પાછા હમણાં, એક મિનિટ. એટલે સ્પાવાળાને એમને 2 વાર ફોન કર્યો એટલે ફોન ઉપાડવાના બંધ કરી દીધા. હવે બીજું છે તો એને આજે એક પોલીસ તરીકે જાણ તમને ના કરી અને અમને જાણ કરીને પાછળનું કારણ એવું છે કે સ્પાવાળા એ લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ પોલીસ અમારા ખીચામાં છે. અને બીજી વસ્તુ હું તમને કહી દઉં કે જો કદાચ માની લો એ આક્ષેપ હોય તો મોસ્ટ ઓફ જેટલા સ્પા છે, અમે જેટલા પણ ન્યૂઝ ચડાવ્યા છે એટલા બધા સ્પાની માલિપા કુટણખાનું ચાલે છે. તો પોલીસને એ કેમ ધ્યાનમાં નથી? હરેક જગ્યાએ આપણે બરોડામાં તો એમ કહે છે કે ભાઈ પાનના ગલ્લા ઓછા છે અને સ્પા વધારે છે. તો આપણે આ ભારત દેશ છે, ગુજરાત છે, આપણું સંસ્કૃતિ દેશ છે. અહીંયા તો પર સ્ત્રીને પર પુરુષ ટચ ના કરી શકે એ સેકન્ડનો આપણે નિયમ છે અહીંયા. તો સ્પાની આવી આને કોને પરમિશન આપી છે? જ્યાં હેન્ડજોબ છે, ટચિંગ છે, બોડી ટુ બોડી છે, આવી કોઈ સ્પા આપણે આ બેંકોક કે થાઈલેન્ડ નથી. અહીંયાની સરકાર આ છૂટ આપી શકે, આપણી સરકાર આ છૂટ નથી આપતી. એટલે તમારે ખરી રીતે અત્યારે તમને આજ ચોકે એ રીતે લાગુ પડતો હોય તો બેન ફરિયાદ દેવા તૈયાર છે. આપ એનું ફરિયાદ લ્યો, સામે નિવેદન લ્યો. તો અમારે ઠેર ત્યાં ગાંધીનગર સંઘવી સાહેબ પાસે ટૂંકમાં ઠેર તમને મોકલવા નહીં, કેમ કે બહારના વ્યક્તિ છે એને કોઈ સપોર્ટ કરવા વાળું નથી. એટલે મારી ફરજ ને મારો પરિચય સાહેબ તમે જે કીધું ને એટલા માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ આજે છોડી દો ભાઈ હું પત્રકાર જ નથી એમ સમજી લ્યો. હું એક ભારત દેશનો આઝાદ દેશનો નાગરિક છું. મારા દેશની માલિપા કોઈ પણ ગેરપ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય મને પૂછવાનો પૂરેપૂરો હક છે. તમારું શું નામ? આવજો બેન, અહીંયા આપણે જે સાહેબ પૂછે એ બેરું લઈ લઈ. શું નામ બેન તમારું? હિન્દી. હિન્દી, હા હિન્દી. એટલે હિન્દી બહાર ના હોય ત્યારે જ આ લોકો આવું કરે ને. મને માયરી છે બહુ પાછી એને, અને બીજું સ્પા છે ને ત્યાં માયરી પણ છે એને પાછી એમ. आप यहाँ कब जॉब करते थे? ये मैं 12 जून को आई थी. 12 जून को. हाँ जी, तो आपका ये कब बनाओ कब बनाना था? 12 जून को ही हुआ था. 12 जून को आया उसी दिन बनाओ. उसी दिन अपने ऑनर ने किया है कि क्या है? वो क्लाइंट आया था उनके. हाँ जी, तो अपने ऑनर को बोला नहीं कि सब कुछ बताया, उधर भी बताया, जितने भी इसके 6-7 ओनर है सबको पता है. ऐसा ऐसा हुआ आपको? हाँ जी, और इन्होंने मेरे सर को नहीं, अभी भी मैं जब 16 तारीख को यहाँ आई मुझे डरा धमका के वापसी राजकोट भेज दी. 12 जून से आज कितना 1 महीना ऊपर हो गया. 1 महीना 7 દિવસ 19 જુલાઈ છે આજે. पुलिस स्टेशन आना चाहिए ना आपको. पुलिस स्टेशन हम बैठे हैं ना. मेरे को ये लोगों बहुत ने नहीं डरा- सुना, तो हम तो है आपके लिए मतलब. अब मुझे હવે હું बात 2 मिनट वचમાં स्टॉप करिस અને हिंदी में बात करूँ हम लोग जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो आपको डरने की किसी से जरूरत नहीं है. आपके ऊपर अगर गलत हुआ है तो आपको इंसाफ मिलेगा. हाँ, हम गुजरात डिपार्टमेंट के जो बड़े मिनिस्टर है ना हर्ष संघवी भाई, आपको उसका भी एड्रेस देंगे, आप वहाँ पे भी बता सकती हो. डरने की किसी से कुछ गलत नहीं. अगर आप सच्ची हो, हाँ. मैं अगर आप झूठ बोल रही हो, गलत कर रही हो तो आपको डरना है. अगर मैं झूठ हाँ, बोलती अभी हूँ- जो स्पा वाले ने जो आपने कुछ हमें ऐसा बताया, जैसे आपने न्यूज भी चलाया, ऐसा बताया कि भाई पुलिस वाले हो मेरी जेब में, वो क्या बताया था वो भी साहब को बताओ. तो साहब को वो भी पता चले कि अगर हमारा- वो आपके ऊपर इतना बड़ा इंजाम लगा दे तो आपको पहले तो ये छोड़ दो बात, पहले तो उसको वो लेना चाहिए कि भाई तू हमारी वर्दी पे दाग क्यों लगा रहा है भाई? हम तेरी जेब में कहाँ से हुआ भाई? हमें गवर्नमेंट सैलरी देती है, तू तो देता नहीं है भाई. क्या वो नाम क्या है? क्या हुआ बताओ. जब मैं 16 जुलाई को यहाँ पर आई थी हाँ जी.
तो मेरे को यहाँ से मैं यहीं पर ही बैठी थी, सब लोग जानते थे, वो स्पा वाले ने भी देखा था मुझे। 16 जुलाई को मैं यहीं पर थी। तो जब मेरे को यहाँ से लोका स्टार में लेके गए ना, तो उधर भी मुझे धमकी मिली। तो मुझे मामा सर ने बोला, कहते हैं कि वो पुलिस वाले तो हमारे जेब के अंदर ही, तुझे जो करना है वो कर। आपको पुलिस स्टेशन आना चाहिए ना। अब मुझे, मैं पहली बार वडोदरा आई थी, तो मुझे कुछ नहीं। प्रॉपर कहाँ के? दिल्ली, दिल्ली से। दिल्ली द्वारका। आपको ऐसे हुआ पुलिस स्टेशन आना हाँ, चाहिए। हमने भी वही बताया एक जे महीना हो गया आप આપણે ચાઇન હિન્દીમાં જ વાત કરીએ એટલે એમને સમજાય શું चाहिए वो। मैंने भी जब मुझे पहले कॉल आया ना, वही बताया कि भाई आपने कंप्लेन क्यों नहीं हाँ की। कंप्लेन आपने तो क्यों- बोलता है कि आप भाई क्यों कर उसने रहे हैं? आप डरा राइट दिया हो। कि भाई आप यहाँ पे राइट हो। यहाँ तो पे आपको कितनी कंप्लेन लड़कियों को मार के फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ, तेरे बच्चे भी ऐसे ही रह जाएंगे, तुझे भी मार देंगे, ऐसा ऐसा किया, मुझे डराया तो मैं डर गई। डरने की जरूरत ही नहीं, अधिकार है सबको। उस टाइम में मुझे धमकी दी गई थी, तो मैं क्या करती, मेरे को चुपचाप राजकोट और जाना अगर पड़ा। दूसरी बात नो, अगर समझ लो कि चाहे हिंदीમાં જ વાત કરું છું એટલે એમને મગજમાં હું વાત કરું છું कि अगर समझ लो कि ये लोग बुरे नहीं है, तो इसका राजकोट से कभी पत्रकारों का भी मुझे कॉल आ गया वो कि भाई ये है, ऐसा नहीं है, थोड़ा ख्याल रखना, इसका न्यूज ऐसा नहीं डालना, वो जिसने किया वो वहीं ऊपर कहीं है, उसका लो, आप पा वाले का मत लो। तो एक पक्का हो गया कि भाई अगर किसी ने बुरा किया ही नहीं है तो उसकी भलामण करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई मैं, ये सब मुझे पहचानते हैं, ये दोस्त पहचानता है, वो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। मैं अगर सही हूँ तो, अगर मैं सही नहीं हूँ तो मुझे कहना पड़ेगा सर छोड़ दो, ये मेरा पहचान वाला है, सर ये मेरा पहचान वाला है, ठीक है। तो जिस तरह से उसके फोन से जैसे मुझे आया, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया वो भी, वो पूरा सारा जो भी होता है मैं पूरा अपने न्यूज में देता हूँ। तो कुछ कुछ गलत हुआ है वो पक्का है। वो इसी हिसाब से वो लोग सब घूमने लगे, वो ऐसा ऐसा करने लगे, ये भी बंद करने। बस हम तो शायद 1 आध घंटे के आसपास हो गया आए वो। आके बंद करके चले गए। नहीं, हम आया तब से बंद ही है। आप आए। और उसका बोलना ऐसा है कि जैसे इसके साथ जो हुआ ना उस टाइम से बंद है। कोई कस्टमर आए, कोई कॉल करे तो खोलता है, और वो भी स्पा नहीं, वो ओनली फॉर सेक्स, फुल सर्विस पण वो। ऑनर का नाम क्या है? ओनर का नाम लाला सर है। लाला सर, रोहित पटेल लिखा हुआ है। એટલે ઉફે નામ જે લોકો હોય ને, કંઈક જીજા કહીને બોલાવે છે, કંઈક લાલા સર છે, કંઈક મુન્ના સર છે। गुजरात का ही है। कोई बात नहीं, आप मोस्ट वेलकम। आपको कंप्लेन देनी हो, आप मोस्ट वेलकम। कभी भी आइए, हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हम साथ में आएंगे अभी, अगर वहाँ पीए सर है तो उनके मिलके जो भी है। हाँ, अभी जो दूसरा लुका स्पा है वो શું છે એનું एड्रेस? हाँ, लुका स्टार, हाँ, वहाँ आगे यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर गया था, वो घर का अंदर में यहाँ था, वहाँ पे इसको मारा गया है। जब गई है यहाँ से प्रेम से बिठा के ले गए कि चल वहाँ से ठंडा पिलाया, वो ये सब कोई किया। आप वहाँ का भी जो भी डिटेल ले हाँ। लीजिए। मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आइए, हाँ। हम बैठे ही हैं। हाँ, मोस्ट और मुझे आप बाद में खत्म हो जाए, बाद में नंबर भी आप मिस कॉल लगा दो। मैंने सर को दे दिया पहले ही। मेरा में भी लगा देना। आपका हाँ। नंबर सर के पास है ही ना, आप ले लेना। अरे ले लेना, अभी फ्लाइट मोड में ना, अभी ले लेना बस। अभी લઈ લે આનું હે હા બે મિનિટ चलो બે મિનિટ ઉભા રહો ને સાહેબ, ખાલી એક થોડી અહીં મારી બાઇટ લઈ લો એટલી વાર જ. તો નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપણે જેમ કે જોયું તો કે ભાઈ ખરી રીતે ટૂંકમાં આપણે અહીં ઇન્ટરવ્યુ લઈ છે એવું મેસેજ મળતા અત્યારે કોઈ 2 પોલીસ સ્ટાફના માણસો આવી ગયા છે। તો ખરી રીતે જો આવો મોટો બનાવ બનેલો હોય અને આટલું કૃત્ય ચાલતું હોય કે ભાઈ મોસ્ટ ઓફ આપણે ઘણા પણ ન્યૂઝ રિલીઝ કરેલા છે, જે મોસ્ટ ઓફ જેને પણ આપણે સ્ટિંગ કર્યા છે અને ન્યૂઝ ચલાવ્યા છે, મોસ્ટ ઓફ દેહનો વેપાર જ ચાલે છે। જેમ આપણે રમેશા કીધું છે, બોડી ટચિંગ, ટોપલેસ, હેન્ડ જોબ, તો આવા બધા જે છે આ કોઈ વસ્તુ મસાજમાં નથી આવતી। તો અત્યારે જે આ સ્પા છે, લુઈસ સ્પા, આ સ્પામાં બનાવ બનેલો છે। અને જેમ કે આપણે કીધું કે બંને સ્ટાફના પણ આવ્યા હતા અને અત્યારે તો ખરી રીતે સ્થળે રીચ થઈ ગયું, એમને અત્યારે સાથે લઈ અને આપણે કમ્પ્લેન પણ ટૂંકમાં કહી કે બેનની કમ્પ્લેન લઈએ અને જે સત્ય અને જે હકીકત છે એ જાણી જોઈને, જેમ કે બેને કીધું એમને લુકા સ્ટાર કરીને સ્પા છે ત્યાં માર્યા હતા, બહુ માર મારેલો છે, એમની સાથે હાથાપાઈ કરેલી છે, ત્યાં સીસીટીવીમાં છે, એ ફૂટેજ ચેક કરે। અને એ સિવાયનો જે ગ્રાહક એમની સાથે જે આક્ષેપ કરી રહ્યા છે, જે ગ્રાહક એના ઉપર જે રેપ કરેલો છે, આવો જે બેનનો આક્ષેપ છે, તો જે એના કહેવા પ્રમાણે કે ભાઈ સ્પાની અંદર એક રિસિપ્ટ બુક હોય છે, એમાં નામ, નંબર, કોન્ટેક્ટ ને લખેલું છે। તો હું આપણે પોલીસ સ્ટાફને એ પણ જાણ કરીશ કે ભાઈ ખરી રીતે કોન્ટેક્ટને લઈ અને એમના પણ નિવેદન લે અને જે લીગલી કાર્યવાહી થતી હોય એ કરે। તો આપણે હર હંમેશા જેમ જોયું કે આપણે હરેકના પ્રશ્નનો જવાબ દેવા તૈયાર છીએ। આની મોર પણ આપણે ઘણાવે પૈસાની ભાષામાં, મીઠી બીજી ધમકીઓમાં ઘણી રીતે ડરાવવાની ટ્રાય પણ કરેલી। તો જોઈએ તો આ એક જાતનો એક એટલી હદ લગીને ટૂંકમાં જે કહી શકાય ને કે એક આખું રોગ ચાલી રહ્યો છે, એના જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ છે। તો આપણા સ્પાની ઝુંબેશ છે, આપણે કોઈના ડરાવવાથી, કોઈના પૈસાથી ખરીદવાના નથી, ડરાવવાના નથી અને ડરવાના નથી। આપણે જે છે સત્ય જે છે, સત્ય આપણા ન્યૂઝના માધ્યમથી આપણે હંમેશા દેખાડ્યું છે અને હંમેશા દેખાડતા આવશું। ધન્યવાદ।